Good morning, children. Today we will do chapter 12 within the country. In this chapter, we will study about our identity in India. There are certain ID cards which show that we belong to this particular country, right? Like school ID card, Aadhaar card, passport, voter ID card. So we will study these I cards one by one. First is school ID cards. School ID cards are issued to the students of a particular school by the school authorities. It proves that you are a student of a particular school. Various things are written on the school ID card. These are your name, class, father's name, date of birth, phone number, address, right? And the next is Aadhaar card. There are certain documents which are issued by the Government of India which prove that you are the citizens of that country. So among those ID cards are Aadhaar card. Aadhaar card, it is issued by the Government of India to its citizens. Aadhaar card Government of India अपने citizens को issue करती है. It is a 12-digit identity number that is unique to every Indian citizen. ये 12 digit का पहचान पत्र है जो कि हर एक इंडियन सिटीजन के लिए अलग होता है. In the picture you can see 12 digits are written 0000 1111 2222. This is just an example, right? Otherwise, this is a 12-digit identity number which is unique to every Indian citizens. It is issued by the UIDAI. The full form of UIDAI is Unique Identification Authority of India. Aadhaar card UIDAI issue करती है. This is a government agency in New Delhi that issues the Aadhaar card. Next document is voter ID card. Voter ID card is issued by the Election Commission of India. Voter ID card Election Commission of India issue करता है. It is issued to an adult who is 18 years of age and above. ये उस adult को issue किया जाता है जिसकी age 18 years है या इसके above है. Adult वो होते हैं जिनकी age 18 years होती है. 18 years या उसके ज़्यादा एज वाले persons को हम adult बोलते हैं. उन्हीं को वोटर ID कार्ड इशू किया जाता है. It is required for casting the vote during the elections. ये वोटर ID कार्ड इलेक्शंस के टाइम पे वोट देने के लिए यूज़ किया जाता है. जब इलेक्शंस होते हैं हमें अपनी वोट देनी होती है, then these voter ID cards are used. Next is passport. It is a travel document issued by the Government of India. ये एक travel document है जो कि गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है अपने सिटीजन्स को. It is used to travel other countries और पासपोर्ट को हम यूज करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करने के लिए. Next is Indian cities and villages. Our India has 4 metro cities. These metro cities are Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. Life in cities and villages is different. There are certain advantages of living in cities. We will discuss the advantages and disadvantages also. Number 1. बेटर एजुकेशनल मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. शहरों में रहने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी वेल डेवलप्ड. नंबर 2. मोर जॉब्स एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनकम. शहरों में जॉब्स ज़्यादा मिल जाती हैं और इनकम के साधन जो हैं, कमाई के जो तरीके हैं वो ज़्यादा होते हैं. सो पीपल मूव टू सिटीज़. लिविंग स्टैंडर्ड इज़ बेटर. शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, नीड्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो बेटर होता है. डिसएडवांटेजेस. लेकिन शहरों में रहने के फ़ायदे ही नहीं हैं, कई नुकसान भी हैं. उन नुकसान में से फर्स्ट है पोल्यूशन इज़ हाई बिकॉज ट्रैफिक इज़ मोर, सो पोल्यूशन इज़ हाई. हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. वी हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन अवर लिविंग. सो देर इज़ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. जो रहने का खर्चा है शहरों में वो ज़्यादा होता है.
पॉपुलेशन इज ऑल्सो मोर, पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा लोग शहरों में मूव करते हैं ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके और अच्छी उनकी इनकम हो सके, इसलिए शहरों में पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर्स। नेक्स्ट इज विलेजेस। India is an agriculture country. People work in fields to earn their living. India एक agriculture country है, मतलब इंडिया के ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। People work in fields to earn their living. और खेतों में काम करके फसल उगा के वो अपनी living कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। विलेजेस में रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ये हम पहले करेंगे। लेस ट्रैफिक एंड पोल्यूशन, विलेजेस में ट्रैफिक कम होता है इसलिए व्हीकल्स कम हैं, इसलिए पोल्यूशन कम है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, सिंपल लिविंग होती है इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कम है। मोर फ्री स्पेस एंड क्लीन एयर, खाली जगह ज़्यादा होती है, फील्ड्स होते हैं, सो फ्री स्पेस ज़्यादा है, बिल्डिंग्स कम हैं इसलिए हवा क्या है, क्लीन। पोल्यूशन कम है, हवा क्या है, क्लीन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या होते हैं। लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता, उतना मॉडर्न नहीं होता जितना कि सिटीज़ में होता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जितनी डेवलप सिटीज़ में हैं, जितनी मॉडर्न सिटीज़ में होती हैं, वो हमें विलेजेस में नहीं मिलती। ऑल्दो हेल्थ सेंटर्स आर देयर, स्मॉल हॉस्पिटल्स आर देयर, बट मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल आर ऑलवेज लैकिंग इन द विलेजेस। लेस जॉब फैसिलिटीज़, विलेजेस में जॉब की फैसिलिटीज़ भी कम हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कम हैं, सो लोगों के पास जॉब कम होती है विलेजेस में, वो अपना ही काम करते हैं। पीपल ओपन कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, और घरों में काम करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं। पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड्स जो हैं वो वेल डेवलप नहीं हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो है वो शहरों के मुकाबले में इतना बेटर डेवलप नहीं होता। एंड so this was all about this chapter. Thank you.